ایک ایسا ملک جہاں پر آپ کو 2 شادیوں کی آفر ملے گی اور اس کے ساتھ گھر، گاڑی اور جاب بھی ملے گی، وہ ملک کون سا ہے آئیے جانتے ہیں۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج ہم بات کریں گے یورپ کے ایک ایسے ملک کی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش باز بھی ملک کہلایا جاتا ہے۔ یہ ملک یورپ کا ایک حسین ترین ملک ہے۔ کیا بولا تو نے؟ جس کا نام آئرلینڈ ہے۔ آئرلینڈ میں عورت کو جوان رکھنے کے لیے انجیکشن لگائی جاتی ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی کے ساتھ کسی ملک کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگرچہ آپ اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آئرلینڈ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت ہی اچھا سوچا ہے۔ اس ملک میں 30 چھوٹے بڑے جزیرے ہیں۔ 30 جزیروں پر اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے صرف 3000۔ اگر اس ملک میں آپ کو رہنے دیا جائے، جگہ بھی ان کی، پیسہ بھی ان کا، معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، تو وہ کیسے؟ آئیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے، آپ کو ایک ایک کر کے اس کی ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ملک میں آپ فری میں رہیں گے، وہ بھی کیسے؟ اس ملک کی ایک رپورٹ کے مطابق عورتیں بہت زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے مقابلے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ آئرلینڈ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ اپنا یہاں پر فیوچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ان جزیروں کو آباد کرنا ہوگا اور آپ کو وہاں پر مکان دیا جائے گا اور نوکری دی جائے گی، گاڑی بھی دی جائے گی اور لڑکی بھی فراہم کی جائے گی۔ سوری میرا مطلب ہے کہ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ یہ شادی کی آفر کی جائے گی آپ کو۔ یہ بات ویلے منوں تک پہنچاؤ کہ میں نے کسی کو ویلا نہیں رہنے دینا۔ تھوڑا بھائی سمجھو، تھوڑا بیٹا سمجھو۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ نہیں تھوڑا اپنا چینل ہے، تھوڑے بھائی کا چینل ہے یار۔ اور تو اور آئرلینڈ گورنمنٹ آپ کی شادی بھی کرائے گی، گاڑی اسٹارٹ کر۔ آپ کو گھر بھی دے گی۔ بس اس کی ایک چھوٹی سی شرائط ہے۔ شرائط یہ ہے کہ آپ کو اس جزیرے پر صرف اور صرف 5 سال رہنا ہے۔ 5 سال رہنے کے بعد آپ سب آزاد ہیں۔ ہاں، آپ ایک آزاد ہیں۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ وہاں پر عورتیں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے مقابلے میں۔ گاڑی اسٹارٹ کر۔ آپ کو وہاں پر ایک نہیں بتاؤں بلکہ 2 شادیاں کرنی پڑیں گی۔ رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا۔ ہے نا پتے کی بات؟ یہ ملک بہت چھوٹا ہے لیکن اس ملک نے کیا دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹورسٹ ملک کی آبادی سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ اس ملک میں پڑھنے کا کتنا خرچہ آتا ہے، کون کون سی جاب اس ملک میں موجود ہیں۔ شاباش بیٹا، بہت بڑی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسے حقائق آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ لاسٹ میں آپ کو اس ملک کے خوبصورت مقامات دکھائے جائیں گے جو کہ آپ کو وہاں پر جانے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آئرلینڈ ہے اور اس ملک کی آبادی صرف اور صرف 50 لاکھ ہے۔ کیا کر رہے ہو ویلوں، جلدی پہنچو۔ اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے 125ویں نمبر پر گنا جانے والا ملک ہے اور اس کا کل رقبہ 84,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 20ویں نمبر پر گنا جانے والا بڑا ملک ہے۔ آئرلینڈ مشرقی یورپ میں واقع جزیرے نما ملک ہے۔ اس کا نام 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، پہلا آئر اور دوسرا لینڈ۔ آئر کا مطلب ہے دیوی اور لینڈ کا مطلب ہے سرزمین، یعنی دیوی کی سرزمین مطلب آئرلینڈ۔ یہ ملک سمندر سے گھرا ہوا ہے جس کے جنوب میں بالٹک اور اٹلانٹک سی اور شمال میں شمالی آئرلینڈ واقع ہے۔ اس ملک کی سرحد شمالی آئرلینڈ کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی۔ شمالی آئرلینڈ وہ علاقہ ہے جو گریٹ برٹین کی ملکیت تھی۔ دوستو، یہاں کے لوگ آپ کو الگ الگ ایکسینٹ میں انگلش بولتے ہوئے ملیں گے۔ دوستو، آئرلینڈ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ اپنے ملک سے زیادہ دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ کی سوچا پورا ملک ویران پڑا ہے بھائی؟ گاڑی اسٹارٹ کر۔
हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला गाड़ी चला तुसी भी जाओ, कुड़ियाँ शुड़ियाँ फसाओ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पंजाबी सिखाओ की सिखाओ, जल्दी जाओ, फिर ना कहना कि आपने बताया नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुल्क। इस मुल्क की अपनी ज़ुबान आयरिश है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस ज़ुबान का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2% लोग ही आयरिश बोलते हैं। आयरलैंड का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जिसको कैपिटल भी कहा जाता है, वो शहर है डबलिन। ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है और यहाँ के लोग दुनिया में शराब पीने के लिहाज से पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन शराब के साथ साथ ये अपनी सेहत का भी ख्याल बहुत रखते हैं। दुनिया के सबसे फिट लोग भी आपको आयरलैंड में मिलेंगे। हर कोई एक्सरसाइज करता है और खुद को फिट रखता है, खासकर लड़कियाँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इस मुल्क के लोग खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। ये जो समंदर में आप सबमरीन देखते हैं, इसको ईजाद करने वाला साइंसदान भी आयरलैंड से था। ये जनरल नॉलेज का सवाल था, आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो गया। गजब बेइज्जती है। जिसका नाम जॉन फिलिप पोलैंड था। जॉन फिलिप पोलैंड ने 1914 में सबमरीन को ईजाद किया। टाइटैनिक को कौन नहीं जानता, लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाला भी आयरलैंड था। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं। इनका मानना है कि चाय पीने से कुछ नहीं होता जब तक इसमें शुगर न मिलाई जाए। कहा जाता है इस मुल्क में बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप घर से निकलें, भले ही धूप निकली हो, लेकिन आप अपने साथ छाता लेकर निकला करें। कभी भी बादल आ सकते हैं और कभी भी बरसात हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में हर जगह आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी और डबलिन की आबादी 12,70,000 के करीब है। इस शहर के लोग सबसे ज्यादा आपको लिटरेचर और किताबें पढ़ते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से इसको यूनेस्को ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन किसका बाप है कुछ पता नहीं होता। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। औरत और मर्द घर के काम खुद करते हैं। किसी को घर में मुलाजिम रखने का कोई तस्वुर नहीं। और इसकी करेंसी यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 300 रुपये बनते हैं। 98% इस मुल्क का लिटरेसी रेट है, मतलब पूरा मुल्क पढ़ा लिखा है। पढ़ाई के घर से इस मुल्क में आना चाहते हैं कि इनका बेहतरीन फैसला है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज की फीस 9,000 से 15,000 यूरो सालाना है और इस मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस मुल्क में रहने वाले लोग यूरोप के दूसरे मुल्कों में काम करने के घर से चले गए हैं। पूरा मुल्क वीरान पड़ा है। इस मुल्क में लेबर की शार्टेज हो चुकी है। शेफ, नर्सेस, प्लम्बर और IT से रिलेटेड लोग चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस मुल्क में 30 छोटे बड़े जजीरे हैं। वहाँ पर आपको घर, गाड़ी और लड़की भी दी जाएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 70 से 90,000 यूरो आपको दिए जाएंगे। अभी भी ना करो तो फूटी किस्मत आपकी। क्या बोला तूने? ताकि आप जजीरों को आबाद करें। आयरलैंड एक सोशल स्टेट है जहाँ पर लोगों का पूरा ख्याल रखा जाता है। आयरलैंड के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। जावत करना इनकी आदत में शामिल है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस मुल्क में तबलीगी जमात या दीनी लोग को भी वीज़ा फराहम करता है। मतलब आप इस मकसद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जाकर इस्लाम की तबलीग करनी है या कुरान पाक की तालीम देनी है। वैसे तबलीग की इजाज़त तो आपको सऊदीया भी नहीं देता, लेकिन आयरलैंड इस बात की आपको इजाज़त देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट रहते हैं। आपको बता दूं, उस व्हाइट हाउस को भी डिज़ाइन करने वाला शख्स आयरलैंड से था। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। $1,04,000 पर ईयर कमाते हैं, जो कि पाकिस्तानी 2 करोड़ से ज़्यादा बन गए। इस मुल्क के लोग तीसरे बड़े अमीर लोग हैं। यहाँ की मईशत का दारो मदार फार्मास्यूटिकल कंपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर,
फूड प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइसेस पर है। इसके अलावा टूरिज्म भी मुल्क में बहुत सहारा देता है। इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। 50 लाख आबादी के मुल्क में 90 लाख टूरिस्ट सालाना आते हैं। आयरलैंड खूबसूरत और अय्याश लोगों का मुल्क है। आयरलैंड ने यूनाइटेड किंगडम से 6 दिसंबर 1921 में आज़ादी का मुआहदा किया और ये 1 साल बाद आज़ाद मुल्क बन गया। 6 दिसंबर को एंथनी डे मनाया जाता है। उनका कहना है ये वो दिन है जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की अल्लाह की वादनियत और अल्लाह का बंदा होने की गवाही दी थी। मुल्क की 78% आबादी रोमन कैथोलिक, 9.8% आबादी का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, 1.3% आर्थोडक्स और 1.3% मुस्लिम आबादी है। इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे